Okay, hello students, welcome back to the Smart Box. We were watching our chapter 2 parallel lines and the transversal of class 8 maths. Okay, this is the part 3 of the video. In the part 1 we have completed our practice set 2.1, and in part 2 we have explained each and every detail about the practice set 2.2, whichever whatever we have to use in it. Okay, so now we will be starting. Okay, so here we will be starting with our practice set 2.2 now. सबसे फर्स्ट सम क्या है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव. ओके, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव. वी हैव टू डू what we have to solve it, and then we have to choose any answer from A, B, C and D. Okay, now what we have to do, see this, we can see that line M and line N are parallel, ये हमको बोला हुआ है, and P is the transversal. Okay, P is the transversal. We have to find the value of X. Now we know that 3x and x both are what, both are internal angles. Okay, they are both what, internal or interior angles. Okay, so interior angles, whenever we add interior angles we get the answer as supplementary, because adding interior angles are what, nothing but supplementary. Therefore we will be writing it. If we can say, if we want to give the names, we can also give the names, but here we don't need to give the names, so directly we will be adding that 3x and x both are interior angles. Okay, interior angles. And when we add the interior angles, that is if we add 3x plus x, we will be getting 180 degree. We have learned this in the properties, because interior angles on the same side of the transversal are supplementary. यहाँ पे हमको reason लिखना है. What reason we have to write? Interior angles on the same side of what, transversal, are supplementary. Okay, this is what we have to write the reason for this. Okay, now we will be adding it. 3x plus x will be what, 4x. Okay, so 4x is equal to 180. Okay, now this 4 is getting multiplied with x, so this 4 will be getting divided over here. So what will be our answer? X is equal to 180 divided by 4. This will be our answer. Now we will divide 180 by 4 over here. So we will be getting 4 4s are 16, 4 5s are 20. So the answer will be what, 45. Therefore x is equal to 45, and where is 45? C. Okay, so our answer is option C for the first one. Okay, I hope you all are getting it. Okay, now second one is also MCQ, that is multiple choice question. This also we have to solve it. Now how to solve it, again I'll be telling you all. Okay, so in the adjoining figure, if A and B are parallel and line L is the transversal, find the value of x. Again वहाँ पर भी same thing, but if we want we can put the ABC signs over there, and if we don't want then नहीं put करो तो भी चलेगा. But in the previous sum it was required, it was not required, but यहाँ पर required है. So I'll be telling it as P, putting it as A. ये पॉइंट को मैं M पुट कर देता हूँ, ये पॉइंट को Q, ये पॉइंट को S, दिस इज़ N, दिस विल बी B एंड दिस विल बी R. ओके, तो मैंने अपनी मर्जी से पुट किया है, आप कुछ भी पुट कर सकते हो. ओके, नाउ इट विल बी ईजियर फॉर मी टू प्रूव इट. ओके, नाउ व्हाट आई एम टेलिंग, दैट एंगल RNM is equal to angle SNB. Okay, measure angle RNM. Where is RNM? RNM, this angle. And which angle? SNB. Where is SNB? SNB. Okay, these two are what? Equal. Why they are equal? Because they are what? Vertically opposite angle. ये angle
और ये एंगल, दे बोथ आर व्हाट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल। यू हैव टू राइट द फुल फॉर्म। यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए आई एम राइटिंग शॉर्ट फॉर्म। ओके, नाउ एंगल आर एन एम विल बी वॉट 2x। वाई? बिकॉज दिस इज 2x, तो ये भी 2x होगा क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है ना। बिकॉज जस्ट नाउ वी रोट दैट एस एन बी और आर एन एम इक्वल है। एस एन बी इज 2x, तो ये भी 2x होगा। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ वी कैन सी दैट दीज बोथ आर अगेन इंटीरियर एंगल। नाउ वी कैन से दैट नाउ 4x एंड 2x आर व्हाट, इंटीरियर angles. Okay, they both are interior angles. Therefore if we add them, 4x plus 2x, we will get what, supplementary, जो पिछले सम में हमने रीजन लिखा था, that you have to write over here. So we will be getting 6x is equal to 180 degree, x is equal to 180 divided by 6, 6 1s are 6, 30s are, so x will be what, 30. Now where we can see 30? Over here. Therefore our answer will be D. Okay, this is how we solve the multiple choice question. Now we will be doing the next sum over here. Okay, so this is a very important sum over here. यहाँ पर भी हमें जो है इसे मार्किंग्स देनी पड़ेगी, इसे ABCD नेम देना पड़ेगा, बिकॉज वी कांट डायरेक्टली सॉल्व लाइक दिस। ओके, टेक्स्ट बुक में भी ऐसे डायरेक्ट क्यों दिया है आई डोंट नो, बट यहाँ पर हमें जो है वो डालना ही पड़ेगा लाइन। ओके, सो आई विल बी पुटिंग इट एज A, इसको मैं B डाल देता हूँ। ओके, दिस विल बी माई C एंड दिस विल बी माई D। ओके, फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिस विल बी P, दिस विल बी Q, ओके, एंड देन दिस विल बी R एंड दिस विल बी S। ओके, फिर इसे, ये पॉइंट को मैं ले लेता हूँ K, ये पॉइंट को मैं ले लेता हूँ X, ओके, ये पॉइंट को मैं ले लेता हूँ Y, एंड ये पॉइंट को मैं ले लेता हूँ L। ओके, नाउ मुझे क्या दिया हुआ है कि ये जो है ये x डिग्री है, दिस इज 70, दिस इज y एंड दिस इज 40। सो आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड x इन द सम। ओके, सो यहाँ पे मुझे ये करना है। सो आई विल बी स्टार्टिंग विथ व्हाट, आई विल बी स्टार्टिंग विथ AKX। यू ऑल कैन सी AKX, ये वाला एंगल जो 40 डिग्री हमें दिया हुआ है, तो एंगल AKX, ओके, प्लस एंगल KXKL, XKL, okay, this angle and this angle, this angle and this angle will be making what, 180 degree. This is angle in linear pair, we have studied it, angle in linear पैर, जो भी एक साथ होते हैं एंगल्स, एक ही लाइन में होते हैं इस तरह से, तो इसे और इसे ऐड करेंगे हम तो हमको 180 ही आएगा। ओके, बट हियर वी नो दैट इसका आंसर 40 डिग्री है एंड वी डोंट नो XKL, तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल XKL विल बी इक्वल टू, ये 40 यहाँ पे प्लस है, वहाँ जा कर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। So angle XKL will be what, 140 degrees. Okay, so यहाँ पे मुझे XKL आ गया। Now XKL मैंने क्यों फाइंड किया, now you all can see that XKL, ये एंगल मैंने फाइंड किया। ओके, now we know that यहाँ पर ये एंगल, ओके, ये एंगल एंड which एंगल, YLB, YLB, ये एंगल, ये दोनों क्या बना रहे हैं, एक F बना रहे हैं। यू ऑल कैन सी दैट दिस एंगल एंड दिस एंगल, ओके, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर मेकिंग F, तो जितना ये रहेगा उतना ये रहेगा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आई विल बी राइटिंग एंगल XKL विल बी इक्वल टू एंगल YLB, और ये दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, इट विल बी इक्वल टू 140। देयरफॉर मुझे YLB फाइंड करना था, यानी x का वैल्यू फाइंड करना था, x का वैल्यू मेरा क्या आ गया, 140 डिग्री आ गया। ओके, नाउ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो y कैसे आएगा यहाँ पर, तो वी कैन सी दैट XYL, ये एंगल, ओके,
XYL अगर मैं इसे और इसे ऐड करूँ तो ये कितना आना चाहिए, ये 180 आना चाहिए. बट दिस एंगल आई हैव फाउंड आउट कि ये 140 डिग्री है ना. दिस एंगल आई हैव फाउंड आउट कि ये 140 डिग्री है. ओके, सो आई कैन से दैट दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी टुगेदर मेकिंग व्हाट 180 डिग्री. बट यहाँ पे फाइंड क्या करना है मुझे, यहाँ पे मुझे फाइंड करना है y. तो मुझे वहाँ तक पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो XYL के साथ XYL ये एंगल, ओके, you can see this angle XYL and SYD this angle. These both angle are vertically opposite angle. तो ये 70 है तो ये भी क्या होगा 70 है ना. अभी हमने देखा तो what I'll be writing angle XYL is equal to angle SYD. This angle, okay, like this angle and this angle, this angle and this angle are what equal. So ये 70 दिया हुआ है हमें तो ये भी कितना हो गया 70 हो गया. नाउ वाई आई हैव बीन राइटिंग दिस एज 70 बिकॉज अब मैं क्या करूँगा, इसको और इसको ऐड कर दूंगा बिकॉज दिस हैज़ बिकम अ इंटीरियर एंगल. सो एंगल एंगल KXY प्लस एंगल XYL will be equal to what 180 degree. Again interior angle made by a transversal are supplementary. okay, तो यहाँ पर हमें KXY तो नहीं पता है, एंगल KXY that is the value of y नहीं पता है हमें, बट यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें 70 आई थी, यहाँ पे लिखा हुआ है. ओके, तो यहाँ पे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा. दिस 70 विल बी गेटिंग सब्ट्रैक्टेड बाय गोइंग ओवर दैट. तो ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस 70 that is KXY is equal to 110 degree. okay, so that is the y का वैल्यू कितना आया है 110 degree over here. okay, so x का वैल्यू is 140 degree and y का वैल्यू is 110 degree over here. तो यहाँ पर आई होप आपको ये सम क्लियरली समझ में आ गया होगा. मैं बहुत ही स्लो जा रहा हूँ ताकि आपका कुछ भी मिस ना हो. ओके, now let's go to the question number 3. again here also the diagram is really incomplete, हमें इसे complete करना पड़ेगा. and this is a easy sum because ये चारों ही लाइन एक दूसरे को parallel है. P and Q are parallel to each other and L and M are parallel to each other. again this is A, this is B and this will be P, this will be R. okay, this will be my K, this will be my N, this will be my M, इसको L ले लेते हैं, this will be Q, this will be S and this will be Y. ओके, यहाँ पे भी बच गया, यहाँ पे X ले लो. ठीक है, सो ओके, दिस इज़ हाउ वी विल बी नेमिंग इट. आप मैं वापस बोल रहा हूँ, कुछ भी नेम कर सकते हो, ABCDEFGHIJK, आपको जैसा जमे वैसा आप नेम कर सकते हो. वापस एक बार क्वेश्चन रीड कर देते हैं. इन एडजॉइनिंग फिगर P and Q आर पैरेलल एंड L और M जो है वो एक दूसरे को पैरेलल है. P और Q एक दूसरे को पैरेलल है और L और M एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है. फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल A, एंगल B, एंगल C यूजिंग द मेजर्स गिवन एंगल्स जस्टिफाई. ओके, यहाँ पे हमको सिर्फ एक एंगल दिया हुआ है, दैट इज़ दिस वन, एंगल 80 दिया हुआ है ये हमको. बाकी हमको A, B और C क्या करना है, फाइंड करना है. ओके, सो वी विल बी स्टार्टिंग इट. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एंगल, ओके, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, एंगल इन लीनियर पैर है. तो मैं क्या लिखूँगा, एंगल AKL, ये वाला एंगल प्लस एंगल LKN, ये वाला एंगल LKN. ये एंगल और ये एंगल मिला करके हमें कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए. वी नो दैट बिकॉज दे आर व्हाट, एंगल इन लीनियर पैर. ओके, दीज आर एंगल इन लीनियर पैर. नाउ AKL का वैल्यू 80 डिग्री है, हमें पता है. एंगल LKN का वैल्यू हमें नहीं पता है, तो ये 80 यहाँ पे आके क्या होगा, माइनस. तो एंगल LKN विल बी इक्वल टू 180 माइनस 80. तो एंगल LKN क्या हो जाएगा, इट विल बी बिकमिंग 100. अब मैं ये क्यों फाइंड कर रहा था, बिकॉज आई कैन सी दैट ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या बना रहे हैं, देखो इस तरह से F बना रहे.
ये एंगल और ये एंगल तो बनाएंगे ही एफ, लेकिन अगर मैं इसे ऐसा देखूँ तो यू ऑल कैन सी दैट दिस इज़ मेकिंग अ एफ, है ना। मैंने बताया था कि हमारा एफ ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, और नीचे की तरफ भी होगा, एंड ऐसे ऊपर की तरफ भी होगा। सो दिस इज़ मेकिंग एन एफ। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, सो आई विल बी गेटिंग दिस विद द हेल्प ऑफ ओके दिस। सो यहाँ पर ये हमें a फाइंड करना था, ये हमारा a है ना, ये हमारा a है, तो दिस वी हैव टू फाइंड। तो ये कितना है हमारा, दिस इज 100, तो ये भी कितना होगा, 100 हो जाएगा। तो आई विल बी राइटिंग एंगल एल के एन विल बी इक्वल टू क्यू एल एम। क्यू एल एम कैसे आएगा ये हमें, ये आएगा हमें करस्पॉन्डिंग एंगल से, करस्पॉन्डिंग एंगल से आया। देयरफॉर एंगल क्यू एल एम जो है वो कितना होगा, वो होगा 100 डिग्रीज। दैट इज़ नथिंग बट ए का वैल्यू कितना आ गया हमें, 100 डिग्री आ गया। ओके, नाउ ये ए का वैल्यू हो गया। अब इसके बाद यहाँ तक तो हम आ गए। अब नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव सीन दैट इसका और इसका कनेक्शन, इसका और इसका कनेक्शन क्या होगा, दे बोथ आर इंटीरियर एंगल्स। ओके, सो इफ़ आई विल बी एडिंग एंगल एल के एन, ये एंगल, एंड के एन एम, के एन एम, ये दोनों को अगर मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा, तो मुझे कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। अगेन बिकॉज इंटीरियर एंगल। ओके, दिस बोथ आर व्हाट, इंटीरियर एंगल्स। नाउ आई कैन सी दैट ये 100 है, आया हुआ है हमें, तो ये कितना होगा, 100 प्लस एंगल के एन एम इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 100 वहाँ जा कर के क्या होगा, माइनस, तो एंगल के एन एम कितना आ जाएगा हमें, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ 80 डिग्री, है ना, क्योंकि ये वहाँ जाके माइनस होगा, तो 180 माइनस 100 विल बी 80 डिग्री। तो ये एंगल मुझे 80 आ गया। अब वाई एम आई फाइंडिंग दिस एंगल, बिकॉज दिस एंगल एंड दिस एंगल आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। वी कैन सी दैट दिस एंगल एंड दिस एंगल आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एंगल के एन एम इज इक्वल टू एंगल आर एन बी। आर एन बी कहाँ से आया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगेन आई एम राइटिंग शॉर्ट फॉर्म, आपको पूरा लिखना है। ओके, तो देयरफॉर एंगल आर एन बी कितना होगा, आर एन बी भी 80 हो जाएगा। दैट इज तुम्हारा एंगल सी जो है वो कितना होगा, 80। सी का वैल्यू कितना है, 80। सो वी कैन सी ए आ गया है हमें, सी आ गया है। नाउ आई कैन सी दैट यहाँ पे ये इस तरह से एक एफ पैटर्न बना रहा है ना, यहाँ पर सी है और यहाँ पर क्या है, बी है ना, यहाँ पे बी है, यहाँ पर सी है, तो यहाँ पे ये वापस से एफ बना रहा है, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल। तो मैं लिख दूंगा सीधा सीधा कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, सॉरी एंगल बी, है ना। कहाँ से आया ये, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल से आ गया ये। देयरफॉर एंगल बी विल ऑल्सो बी हाउ मच, 80 डिग्रीज। तो यहाँ पे हमारा जो है सेकेंड सम भी फिनिश होता है। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। सॉरी, इट वाज अ थर्ड सम। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पे ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। आई हैव गॉन वेरी वेरी स्लो। आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डाइजेस्ट वगैरह में देखेंगे एंड एनी रेफरेंस बुक, तो आपको नहीं समझेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके दिया हुआ है। ओके, नाउ वी विल बी मूविंग टू आवर फोर्थ सम, दैट इज़ अ स्टार मार्क क्वेश्चन। ओके, स्टार मार्क क्वेश्चन का मतलब बच्चे समझते हैं कि इंपॉर्टेंट है या हार्ड है। So it is not like this. It is a star mark question because it is a question which is containing many of the things for the solution. उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए अपने solution के लिए, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी जो उन्होंने अभी तक टेक्स्ट बुक में नहीं बताई है, बट you have to know it with your extra knowledge. Okay, तो यहाँ पर you can see that only one angle is given to y'all, और A and B are what, parallel lines, and angle L is the transversal for it. Again यहाँ पर आपको जो है ABCD नहीं दिया हुआ है, तो we will be writing it, ये K हो जाएगा, L ले लो, K L M N, और इसको AB ले लो, और इसको PQ ले लो। ओके, so this will be the namings. Okay, now we have to find angle x, angle y, angle z। हमको क्या करना है, फाइंड करना है। सबसे इजी एंगल z फाइंड करना है। why, because these are angle in linear pair। इसको और इसको ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। so first of all we will be writing angle KPA plus angle APM
will be equal to how much? 180 degree angle in linear pair. This will be the reason. Okay, so KPA is how much? 105 degree plus angle APM is, we don't know, is equal to 180. So angle APM वहाँ जा कर के 105 क्या होगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड देन वी विल बी गेटिंग द आंसर एज 75. ओके, 75 डिग्री हमको आंसर आया, दैट इज Z इज 75 डिग्रीज. ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं. इफ़ वी कैन सी दैट दिस इज मेकिंग एन F. ओके, अगर ये देखेंगे हम, ये एंगल Z है और ये एंगल Y है, बट मुझे y यहाँ पर है, बट आई कैन से दैट ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? इक्वल होगा, बिकॉज इट इज़ मेकिंग एन F बाय करस्पॉन्डिंग एंगल. तो लिख लेते हैं, कनेक्ट कर लेंगे उसको बाद में. तो एंगल APM विल बी इक्वल टू एंगल PQN. ओके, PQN बाय व्हाट? बाय करस्पॉन्डिंग एंगल. ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया ये. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? देखो, दिस इज Z एंड दिस विल बी एंगल. तो Z तो हमने फाइंड किया था 75 डिग्री, तो एंगल PQN हमारा क्या हो जाएगा? 75 डिग्री हो जाएगा. ओके, 75 डिग्री हो गया. अब ये 75 है, ये अगर 75 आ गया हमको, तो हम क्या करेंगे? इसे और इसे ऐड करेंगे, बिकॉज दे आर एंगल इन लीनियर पेयर अगेन, तो 180 होना चाहिए. सो वी विल बी राइटिंग एंगल PQN plus angle BQN. okay, BQN will be equal to what? 180 angle in linear pair. okay, again you have to write the full form. यहाँ पे space नहीं है, इस वजह से नहीं लिख पा रहा हूँ. angle PQN is 75 degree we know, और BQN हमें नहीं पता है, then वो वहाँ पर जा कर के subtract होगा by 180. so we will be getting the answer as 105. ओके, सो BQN 105 है, यानी एंगल Y जो है वो 105 डिग्रीज है. ओके, सो इफ एंगल Y इज 105, you all can see that angle Y and angle X are vertically opposite angles. तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखूँगा? एंगल Y इज इक्वल टू एंगल X वर्टिकली अपोजिट एंगल. रीजन है देयरफॉर एंगल X भी हमारा क्या हो जाएगा? 105 डिग्रीज हो जाएगा. सो दिस इज, सो हियर इट इज़ द फिफ्थ सम. ये बहुत ही आसान सम है, बस दिख रहा थोड़ा सा डिफिकल्ट है. अगेन स्टार मार्क क्वेश्चन है. सो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कुछ भी जो है आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दिया हुआ है, सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने आना चाहिए. ओके, नाउ वी विल रीड द क्वेश्चन. इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P इज पैरेलल टू लाइन L इज पैरेलल टू लाइन Q. ये P है, ये Q है, ये L है. ये तीनों लाइन एक दूसरे को क्या है? पैरेलल दी हुई है. एंड दिस इज द वन ट्रांसवर्सल, दिस इज वन ट्रांसवर्सल एंड दिस इज द सेकेंड ट्रांसवर्सल विच इज कटिंग द 3 पैरेलल लाइन्स. ओके, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ओके, x का जो वैल्यू है ना, अब x इज नॉट ओनली दिस मच, x पूरा यहाँ से यहाँ तक एंगल है. ओके, नाउ वी कैन सी दैट यहाँ से यहाँ तक एक z बन रहा है, दिख रहा है सबको. तो दिस विल बी 40, सो दिस विल ऑल्सो बी 40, इतना आधा पार्ट विल बी 40. ओके, नाउ अगेन यहाँ पे भी एक z बन रहा है इस तरह से. सो अगर ये 30 है तो ये यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा? हमारा 30 होगा. और फिर ये दोनों को हम जब ऐड करेंगे सो वी विल बी गेटिंग 70. तो बहुत ही ईजी है. ओके, लेकिन सबसे पहले, उससे पहले हम लोग यहाँ पे नेमिंग दे देते हैं. लेट दिस बी L, दिस बी B, दिस बी C. यहाँ पे C ले लेते हैं, यहाँ पर P ले लेते हैं, दिस विल बी N, दिस विल बी Q, दिस विल बी D. ओके, और इसको भी कुछ ले लेते हैं, M ले लेते हैं. ओके, सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग इट. सबसे पहले हमें पता है कि AB एंड CD आर व्हाट? पैरेलल. ओके, और LM उसका क्या है? LM विल बी द ट्रांसवर्सल. ओके, LM विल बी द ट्रांसवर्सल. ओके, सो देयरफॉर एंगल, मेजर एंगल LMD विल बी इक्वल टू मेजर एंगल ALM. क्यों ऐसा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, दिख रहा है हमको, तो वी विल बी राइटिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ओके, नाउ नेक्स्ट, सो LMD ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, क्योंकि ALM क्या है? ALM हमारा 40 है ना. तो वी विल बी राइटिंग
मेजर एंगल LMD विल बी इक्वल टू 40 डिग्री। तो ये तो हमें आ गया है ना। अब ये लाना है, सेम तरीका है वैसे ही लाना है, ठीक है। सो व्हाट वी विल बी राइटिंग दैट CD इज पैरेलल टू PQ, CD इज पैरेलल टू PQ, और ट्रांसवर्सल क्या है CN, एंड CN इज द ट्रांसवर्सल। ओके, सो CN इज द ट्रांसवर्सल। अब क्या करेंगे, मेजर एंगल DCN will be equal to measure angle PNC, एंगल PNC। ओके, वापस से वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, दिस विल बी द आंसर। तो हमारा जो एंगल ये है, जो हम एंगल लिख रहे हैं DMN, ओके DMN, सॉरी यहाँ पे PNC नहीं आएगा, PNC आएगा, और DCN, ओके या DCN। सो DCN, एंगल DCN विल बी व्हाट 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हमें 30 डिग्री आ गया, ये एंगल 30 डिग्री आ गया, ये एंगल हमें 40 आ गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, एक्चुअली मुझे फाइंड करना है LMC। ओके, LMC मुझे फाइंड करना है। तो एंगल LMC जो है दैट विल बी इक्वल टू एंगल LMD, ये एंगल प्लस एंगल NMD। तो यहाँ पर ये एंगल हमें कितना आया है 30 आया है, ये एंगल हमें कितना आया है 40 आया है। तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना आएगा 70 आ जाएगा। ओके, सो देयरफॉर एंगल LMC विल बी इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहाँ पर हमें x का वैल्यू कितना आया है 70 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा ये सम जो है ख़त्म होता है। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स। और अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हमें नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।